Jain Cadet. Today we are going to discuss about that MSc CET syllabus concerning that chemistry. As far as this chemistry subject is concerned, here, as you know, out of that total 200 marks, here chemistry subject carry 50 marks. So before that, here we have to discuss about the syllabus, where that chemistry syllabus related with 11th standard and 12th standard. And comparatively, you know very well that 12th standard is very, very important. If we go in percentage, about 80% for 12th standard and 20% for 11th standard. So let us see about that syllabus related with chemistry subject in MSc CET. Do you know the long form of MSc CET? MSc CET. Here, M stand for Maharashtra, S stand for Health, T for Technical, and CET, that common entrance test. If you don't know, then let us see here that MSc CET. Next, here, go on, proceed. आगे. Next. As far as 11th standard, 11th class is concerned, one by one, I am just explaining that name of that chapter or topic. Here, first name, some basic concept of chemistry. Second, state of matter, where gases and liquids are included. Third, redox reaction. Next, surface chemistry, nature of chemical bond, hydrogen. Next chapter, whatever that, here before that we must know, among that all branches of chemistry, you know that number of branches are there in chemistry. As you know that organic chemistry is there, physical chemistry is there, analytical chemistry is there, organic chemistry is there. If you go for that, each and every chapter that belongs to different type. Just like that organic chemistry where only reactions are concerned, जहाँ पे सिर्फ रिएक्शन होगी, जहाँ पे सिर्फ केमिकल कंपाउंड्स के नाम होंगे, जहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते, जैसे कि यहाँ पे चैप्टर के नाम लिखे कुछ, सरफेस केमिस्ट्री होगा, जिसके बाद में वहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन का एक चैप्टर है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. So this one is about that some chapters which belongs to 11th class. Now next 7 number S block element, especially alkali and alkaline earth metal, which belongs to inorganic chemistry. Where is the position of S block element in the periodic table? S block element की position क्या है periodic table में? On left side. And especially only two groups are there. First A group, second A group. Namely उसे कुछ नाम देते हैं हम. फर्स्ट का जो नाम होता है वो होता है अल्कली मेटल. जैसे यहाँ पे मेंशन किया है ना अल्कली, दैट अल्कली मेटल मीन्स व्हाट? फर्स्ट ग्रुप. सेकंड इज मेंशन हियर अल्कलाइन अर्थ मेटल, दैट मीन्स second group. So in the periodic table, first group it is called as alkali metal. ध्यान में रखना है, फर्स्ट ग्रुप को हम क्या नाम मेंशन करते हैं? अल्कली मेटल. सेकंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल. तो 11th स्टैंडर्ड में स्पेशली हमें ये दो ग्रुप पढ़ना है डिटेल के अंदर. देन नेक्स्ट, फंडामेंटल कंसेप्ट एंड मेथड्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी होगा बेसिक आइडिया, जैसे हमने वहां पे लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, पीरियड टेबल के बारे में एक्सप्लेन किया था, हाइड्रोकार्बन के बारे में एक्सप्लेन किया था. ऑल दिस बिलोंग टू दिस फंडामेंटल कंसेप्ट रिलेटेड विद दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. देन नेक्स्ट, अल्केन, वन ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज देयर, अल्केना. अल्केन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कौन बताएगा? व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्केन? यस संग्राम. That hydrocarbon which contain carbon-carbon single bond. So alkane is there. Next, that 12th standard 12th class के जो टॉपिक रहेंगे वो वहाँ पे देखना है. फर्स्ट होगा सॉलिड स्टेट. अभी बस आपको वहाँ पे नाम देखना है. केमिकल, थर्मोडायनामिक एंड एनर्जेटिक्स. थर्ड होगा वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. देन नेक्स्ट, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन. What is mean by isolation? You know the meaning of isolation, this word? Just separate करना, जैसे हम करते हैं ना, separate करना, just that isolation. Solution and colligative properties. Next, p block element. Now you must know the position of again p block element in the periodic table. On right side, p block element. Total how many groups are there? In the p block element, total how many groups are there? 6. Then next, group 15 element.
पी ब्लॉक एलिमेंट में कौन से ग्रुप देखने हैं, तो वो हो गए पी ब्लॉक एलिमेंट में एक 15 ग्रुप, जैसे कि हमने पहले कहा था वहां पे 13-14 ग्रुप कहाँ पे पढ़ने वाले हम 11 स्टैंडर्ड में, ठीक है। ये 12 स्टैंडर्ड से बिलोंग करता है 15 ग्रुप एलिमेंट। देन नेक्स्ट डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक, इन बिटवीन एस एंड पी, इन बिटवीन इसका मतलब मिडल, एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट at the bottom of the periodic table. Then next, chemical kinetic. What is meant by chemical kinetic? Simply it is related with that speed of reaction, rate of reaction. That means here chemical kinetic. The next, coordination compound. This word is not familiar for you, but one special chapter is there, very very important, coordination compound. I would like to mention that two example. coordination compound के दो example है। आपने बायोलॉजी के अंदर क्लोरोफिल नाम सुना होगा, आपने हीमोग्लोबिन नाम सुना होगा। अब इससे केमिस्ट्री का क्या लेन देना, ये यहाँ पे इनके एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। उसके अंदर आयन होता है हीमोग्लोबिन के अंदर, वो ट्रैप होता है, बहुत सारे यहाँ पे सराउंडिंग में एलिमेंट होते हैं, वो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ने वाले हैं। क्लोरोफिल भी होता है, क्लोरोफिल का आपने सुना होगा, उसका वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका यूज क्या है, उसका वर्क क्या है, लेकिन उसका कंटेंट, उसका स्ट्रक्चर देखा है आपने, एक्चुअल स्ट्रक्चर उसके अंदर क्या होता है, तो वो भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। देन नेक्स्ट, हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन एंड अरीन। अल्केन यानी वो अभी अभी हमने एक्सप्लेन किया था हाइड्रोकार्बन वाला अल्केन, उसका डेरिवेटिव यानी जो अल्केन से फॉर्म किया जाता है उसे हम अल्केन का डेरिवेटिव कहते हैं। स्पेशली हाइड्रोजन डेरिवेटिव, व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, इट इज वन ऑफ द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, दैट नंबर 17 ग्रुप एलिमेंट। जो 17 ग्रुप एलिमेंट होता है ना पीरियोडिक टेबल में, हम उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन फैमिली मेंबर, ध्यान में रखो। नेक्स्ट, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। देन नेक्स्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, ऐसे कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन होता है। कोई कंपाउंड आपको पता है जिसमें नाइट्रोजन होता है, कोई भी एक एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए, कोई भी चलेगा। अमोनिया नाम सुना है, अमोनिया नाम से वहां पे अमाइड नाम आता है, वहां पे अमाइड नाम आता है। आपने यूरिया तो सुना होगा, यूरिया वन ऑफ द फर्टिलाइजर इज देयर। वहां पे देखो उस बैग के ऊपर कुछ लिखा होता है ना। अभी यूरिया की जब स्पेशली बात करते हैं, दैट यूरिया कंटेन नाइट्रोजन, तो वहां पे हम यूरिया की भी पढ़ाई करने वाले, स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या होता है। देन अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, अभी अल्कोहल अलग से नाम आया है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। अभी अल्कोहल इट इज वन ऑफ द मेन कंटेंट ऑफ बेवरेज, ये जो लिकर होते हैं या कोई तो वहां पे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जहां पे अल्कोहल का यूज किया जाता है। तो अल्कोहल का नाम एटलीस्ट सुना होगा आपने। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप फॉर अल्कोहल, OH, सिंगल बॉन्ड OH, जिसे हम हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं। फिनॉल, वो भी हमने एक्सप्लेन किया था, जब OH ग्रुप बेंजीन पे अटैच होता है हम उससे क्या कहते हैं, फिनॉल। एंड देन नेक्स्ट वन, ईथर, it is one of the derivative of alcohol. Then next, polymer, it is a very very important, famous and very very interesting chapter. पॉलीमर की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे अब यूटेंसिल जो है ना, बहुत सारी चीजें है ना, वो पॉलीमर से बनी होती है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो हम पॉलीथीन की बात करते हैं हमेशा, पॉलीथीन कैरी बैग होती है ना, तो पॉलीथीन का मतलब हमें पता नहीं, हम जाते हैं शॉप के अंदर बोलते हैं सर पॉलीथीन दो, हमें पॉलीथीन दो, पॉलीथीन का मतलब क्या है पता नहीं रहता है। एक्चुअल स्ट्रक्चर हमें वहां पे पढ़ना है, पॉलीथीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कैसे बनता है, वो प्रिपेयर करके दिखाना है। सो दैट प्रिपरेशन इज गिवन इन दिस चैप्टर पॉलीमर। देन नेक्स्ट, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। पहले दिन मैंने आपसे वही डिस्कस किया था, हमारे डेली लाइफ में, डेली रूटीन में केमिस्ट्री का यूज कैसे होता है, कहाँ पे होता है, तो हर जगह पे केमिस्ट्री है। ओके, देन नेक्स्ट, बायोमॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स वन ऑफ द बायोमॉलिक्यूल इज मेंशन कार्बोहाइड्रेट। अभी बायोमॉलिक्यूल के अंदर देखो, आप बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हो, मे भी पढ़ा होगा या सुना होगा वहां पे, कार्बोहाइड्रेट इट इज वन ऑफ द बायोमॉलिक्यूल। उसके साथ में बहुत सारे होते हैं, वहां पे लिपिड होता है, वहां पे स्टार्च होता है, वहां पे नाइट्रोजनस बेसिस के बेस पे वहां पे हम वो डीएनए, एनडीए, अपने डीएनए, आरएनए, वो भी एक्सप्लेन करते हैं। इट इज वन ऑफ द बायोलॉजिकल पार्ट विच इज इंक्लूडेड इन केमिस्ट्री। So both this biology and chemistry is simply mixed biomolecules, that means carbohydrate. Then next, among this one, जो सिलेबस आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर के नाम हमने वहां पे एक्सप्लेन किए, no need to write here. So simply a number of chapter which belongs to, especially if we go for that physical chemistry
फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो हम पढ़ने वाले, जहाँ पे फिजिकल चेंजेस होते, फिजिकल चेंज का कोई एक एग्जाम्पल, कोई भी एक एग्जाम्पल जहाँ पे फिजिकल चेंज आपको दिखाई देता है, खुली आंखों से हमें जो चेंज दिखाई देता है, हम उसे फिजिकल चेंज कहेंगे। एक सिंपल एग्जाम्पल, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस, अगर उसी वाटर को हमने बॉईल कर दिया एट 100 डिग्री सेल्सियस, इट कन्वर्ट्स इनटू वेपर, बॉईल स्टार्ट होता है ना। तो यहाँ पे देखो तीनों भी फेज आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आइस यानी सॉलिड स्टेट, वाटर यानी लिक्विड स्टेट, एंड दैट वेपर मीन्स गैसियस स्टेट। तो ये जो फिजिकल चेंज होता है ना, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ये चेंज कैसे होता है वो हम वहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ने वाले। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई जो फिजिकल चेंज होता है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, आइस टू वाटर, व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या चेंज होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। तो जैसे वहां पे लिक्विड से वहां पे वेपर बनते हैं, तो वहां पे भी टेम्परेचर इंक्रीज होना है, तो वहां पे टेम्परेचर वो एक काम करेगा कि भाई टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो स्टेट किस में चेंज होती है, समझ में आया। तो दिस वन इज अबाउट दैट फिजिकल केमिस्ट्री, वो वहां पे देखना है, आगे देखना है आपको, क्लोज करो ये। देन नेक्स्ट, स्पेशली वन ऑफ द चैप्टर नेम हियर मेंशन, इट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सी हियर इन दिस सिलेबस, सिलेबस में कहो, बोर्ड एग्जाम में कहो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहो, ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आपको पीरियड टेबल से भी रिलेट करना है। ये चैप्टर के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे एलिमेंट आए, आपको बार बार वो रिपीट करना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमें पढ़ना है, तो पहली बात हमें पता होना चाहिए कि एटम यानी क्या होता है। इन सिंपल लैंग्वेज, एटम का मतलब होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, जिसे हम और डिवाइड नहीं कर सकते, जिसे हम और डिवाइड नहीं कर सकते, हम उसे कहेंगे इंडिविजुअल, बराबर है ना। तो सिंपली दैट एटम वेयर इफ यू गो एनी स्ट्रक्चर, एनीथिंग, अगर हम उसे क्रश करते जाएंगे, छोटे छोटे पीस में अगर हम उसे बारीक करते जाएंगे, तो वहां पे सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो हमें मिलेगा, सबसे स्मॉलेस्ट, उसे हम और डिवाइड नहीं करेंगे, दैट स्मॉलेस्ट पार्ट इट इज नथिंग बट द एटम, उसे हम क्या कहने वाले हैं, एटम। तो बस इसी एटम के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। अभी आपको कितना नॉलेज है ये मुझे पता नहीं, मैं ये कंसीडर करके चलता हूँ आपको एटम के बारे में बहुत सारा नॉलेज है, तो भी मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। एटम के अंदर एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि एटम के अंदर कुछ फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। उसके अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। एक का नाम होता है प्रोटॉन, दूसरे का नाम होता है न्यूट्रॉन, थर्ड का नाम होता है इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे अगर स्लाइड में अगर हम देखते तो वहां पे एक एक करके आपको दिखाई देगा। फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर गिवन, नेमली फर्स्ट वी वांट एक्सप्लेन हियर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी का मतलब होता है उसकी खोज, खोज यानी फर्स्ट टाइम उसे किसने वहां पे इन्वेंट किया या दिखाया कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कैसे होता है। देन नेक्स्ट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, एंड देन नेक्स्ट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। यानी तीनों जो पार्टिकल्स है, फंडामेंटल पार्टिकल्स है, ये एटम के सब्सटेंस पार्ट है, एटम के कंटेंट है, और इन तीनों पार्ट का हमें डिस्कवरी एक्सप्लेन करना है। यानी कौन सा पार्टिकल पहले डिस्कवर किया गया, किसने किया, कब किया, कैसे किया, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, ये सब हमें वहां पे पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। So we will discuss about that first, discovery of electron later. So here before that we must know who were the scientists who discovered this one, and that information that first proton, this fundamental particle, subatomic particle, that second here that name is explained here, that name of scientist who discovered this particular fundamental particle. So first proton who was discovered by Rutherford in 1909. Then next particle, it is a neutron who discovered by James Chadwick. At least Chadwick ये नाम आपको ध्यान में रखना है, and it was discovered in 1932. And very important that we are going to explain first, it is a electron. इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया, जे थॉमसन in 1897. तो बस यहाँ पे देखो, आपको ईयर तो कोई पूछने वाला नहीं, रेयर केस होगी ईयर पूछना, लेकिन यहाँ पे आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि किसने डिस्कवर किया। समझ में आया? तो आपको एटलीस्ट पहले ये ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन. थॉमसन वाज द साइंटिस्ट फर्स्टली हु हैज गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, कैसे होता है,
और उसे अपने आप तो नहीं समझ में आया होगा, कैसे उसके पास में कोई डिवाइन तो पावर नहीं होगी कि भगवान ने कुछ दिया उसको और उसने इलेक्ट्रॉन दिखाया हमें, समझ में आया? उसने कुछ ना कुछ वहां पे एक्सपेरिमेंट किया होगा और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान while that experiment was going on here he concluded that should be contain something which is like electron. उसने इन्वेंट किया, उसने डिस्कवर किया, उसको बाद में पता भी चला कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं, लेकिन तब तक उसने नाम नहीं दिया था, उसे पता भी नहीं था कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे चार्ज कितना होता है, कैसे होता है। लेकिन जो उसने एक्सपेरिमेंट किया ना, वही एक्सपेरिमेंट हमें वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। एंड दैट एक्सपेरिमेंट इज वेरी वेरी फेमस विद दैट हेडिंग, दैट सिंपली कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जो हमें वहाँ पे पढ़ना है। कौन सा एक्सपेरिमेंट है? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसके पहले एक बार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको एनोड कैथोड के बारे में कुछ पता है? एनोड कैथोड ये कुछ इलेक्ट्रोड के नाम होते हैं, वहां पे कोई पर्टिकुलर चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जब हम एनोड की बात करते हैं, यहाँ पे आपको समझ में आएगा बाद में एक्सपेरिमेंट के अंदर, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो वो एक्सपेरिमेंट हमें अगर एक्सप्लेन करना है, फर्स्टली मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ करता हूँ और बाद में वहां पे देखते हैं। सिंपली आपको इन शॉर्ट बता दूं, एक बार वहां पे उसको रोटेट करो, वहां से मिस नहीं होना चाहिए। Here one of the glass tube is here. ये सिलेंडर शेप की जो है ना, ये ग्लास ट्यूब है, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैंने यहाँ पे जो दिखाया, इट इज वन ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड इट इज नेम एज कैथोड। इसे हम क्या कहने वाले हैं? कैथोड। एंड राइट मोस्ट साइड में जो होगा, इसे हम कहने वाले हैं एनोड। तो यहाँ पे देखो, ये जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड हम प्लेस करने वाले, पहले बात समझ लो। ये इलेक्ट्रोड जो है, हम वहाँ पे कोशिश करेंगे वायर थ्रू वहाँ पे कोई सर्किट बनाने की। सर्किट होगा लेकिन वो कंप्लीट नहीं होगा। मैंने यहाँ पे कुछ दिखाया है, इसका मतलब आपको वहां पे समझना है। यहाँ पे कोई डायग्राम में नहीं दिखाऊंगा, या समझ लो यहाँ पे, ठीक है। ऐसे कुछ दिखाता हूं, यहाँ पे मैंने लिख दिया कुछ, यहाँ पे ऐसे कुछ लिख दिया है। बैटरी, बैटरी का यूज पता है आपको? हमें अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है, अप्लाई करना है, बैटरी का यूज करेंगे हम, ठीक है। एक रफ डायग्राम यहाँ पे मैंने स्केच किए, जहां पे हमें क्या पता होना चाहिए। वन ग्लास ट्यूब इज देयर, दिस सिलेंडर शिप क्या है यहाँ पे? ग्लास ट्यूब। उसके बाद में यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड हो गए, कैथोड एंड एनोड, एंड दिस इलेक्ट्रोड आर इंटरकनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ बैटरी। जो भी वहां पे बैटरी होगी उसके साथ। अभी आपसे अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ, यहाँ पे हम सर्किट की बात करते हैं, क्या यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हुआ है? सर्किट कंप्लीट कब होगा? जब वो यहां से स्टार्ट होगा और वापस वहां पे कनेक्ट हो जाएगा, उसे हम कहेंगे सर्किट कंप्लीट होना। देखो, हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं कैथोड से और यहां तक आए एनोड तक, इनके बीच में गैप है ना। अगर हम यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, देखो, और यहाँ पे अगर मैं कोई यहाँ पे एमीटर यूज कर रहा हूँ, एमीटर का यूज क्या होता है? वहां पे डिफ्लेक्ट करना। अगर वहां से करंट फ्लो हो रहा है तो वहां पे डिफ्लेक्शन होगा, बराबर है ना। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। ये अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है, अगर मैं यहाँ से बैटरी से ये ऑन कर देता हूँ, तो यहाँ पे एमीटर में कोई डिफ्लेक्शन दिखाई देगा नहीं, क्योंकि वो सर्किट इनकम्प्लीट है। ये हमारी सोच रहेगी, हम यही सोचने वाले हैं ना। लेकिन जब वो थॉमसन, जे थॉमसन द साइंटिस्ट हु ट्राई टू डू दिस एक्सपेरिमेंट, देन व्हेन ही अप्लाई दैट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे वहां पे वो इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करता है, तो वहां पे उसका जो ऑब्जर्वेशन होता है, कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसे होता है कि भाई ये एमीटर जो है ना, वहां पे कुछ डिफ्लेक्शन दिखाता है, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन दिखाता है। दो यहाँ पे कुछ गैप है तो भी वहां पे डिफ्लेक्शन दिखाता है। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? उसके दिमाग में तो आया होगा नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो इस सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, बराबर है ना। तो ये उसने गेस किया। अब ये स्पीच समझने के लिए बताया मैंने यहाँ पे, कोई डायग्राम में यहाँ पे एमीटर नहीं आपको मेंशन करना है। तो सिंपली हियर, जैसे हम यहाँ पे ये बैटरी ऑन करते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो आपको वहां पे ये जो है ना इलेक्ट्रोड, कैथोड से कुछ रेज ऐसे मूव होते दिखाई देंगे, एंड द डायरेक्शन इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। मैं यहाँ पे डायरेक्शन भी दिखा दूं, यहाँ पे डायरेक्शन, यहाँ पे कैथोड टू एनोड हो रहा है,
बराबर है। अब इसके पहले मैंने आपको ये भी बताया था, कैथोड पे चार्ज होता है पॉजिटिव, एनोड पे होता है नेगेटिव। सिंपल क्वेश्चन फॉर यू, if that rays coming from this cathode, first I would like to tell that rays are called as cathode rays. इसे हम क्या कहने वाले हैं, cathode rays, because that are coming from cathode, बराबर है ना, इसलिए cathode rays. So that cathode rays are passing in straight line towards, किसके तरफ जा रहे हैं वो, एनोड के तरफ जा रहे हैं। अगर एनोड के तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑब्जर्वेशन के बेस पे एक कंक्लूजन बनाना है कि भाई इस कैथोड रेज के अंदर जो भी होगा, पता नहीं हमें, जो भी होगा उस पे कौन सा चार्ज होगा। अगर आपका दिमाग आप सही ढंग से यूज कर रहे हो तो आप आंसर दोगे। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूं, दैट रेज कमिंग फ्रॉम कैथोड आर पासिंग टुवर्ड्स एनोड, देन व्हाट टाइप ऑफ चार्जेस शुड बी देयर ऑन दैट पार्टिकल विच कंटेन दैट कैथोड रे? Positive. Your answer. It is absolutely opposite directly. Just tell me here anode, simply anode की जब हम बात करते हैं, जब एनोड की जब हम बात करते हैं तो एनोड पे यहाँ पे हमने दिखाया था नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इन रिवर्स यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब क्या होगा? That time you are correct. Now at this moment, now these particles are traveling in straight line towards anode which possess positive charge. Now अगर वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे, अगर वो पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे तो वो पार्टिकल पे चार्ज कौन सा होना चाहिए? Negative. As that negative positive attraction, opposite charge attraction, being a positive charge on this anode, here that cathode or negative charge, that particles which are attracting to anode, पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होने वाले? नेगेटिव। इसका मतलब इस पार्टिकल पे कौन सा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव। सो अकॉर्डिंग टू दैट हियर ही कंक्लूडेड दैट दैट शुड कैरी नेगेटिव चार्ज। उसमें कौन सा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इस पे नेगेटिव चार्ज रहता है, हमेशा ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज होता है। उसका डिटेल में स्टडी जो होगा हम वो चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो इन दिस वे दैट इज जस्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये हुआ कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे आपको बस ध्यान में क्या रखना है, एक ग्लास ट्यूब होती है, दो इलेक्ट्रोड वहां पे इमर्स करते हैं। कैथोड होता है लेफ्ट साइड में, एनोड होता है राइट साइड में। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज। दिस टू इलेक्ट्रोड्स आर इंटरकनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ बैटरी सप्लाई। और यहाँ पे कुछ तो भी दिखा है, ये क्या है? इसका कोई ना कोई मतलब होगा। सो सिंपली दिस वन इज नथिंग बट दी वैक्यूम पंप। इट इज अ वे टूवर्ड्स वैक्यूम पंप। ये वैक्यूम पंप की तरफ जाने वाले वहां पे एक पार्ट होगा। इसका यूज क्या है? ये ट्यूब के अंदर जो भी गैस होगा वो गैस पूरा अगर हमें बाहर निकालना है, जीरो गैस रखना है वहां पे, जो भी होगा अगर आपको गैस निकालना है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस वैक्यूम पंप दैट गैस इज सिंपली कम्स आउट। और जो आपको स्टडी करना है, that gas you want to investigate, that you have to include in that cylinder, in that glass tube। जो गैस आपको स्टडी करना है वो इस ग्लास ट्यूब के अंदर वहां पे इंसर्ट करना है। समझ में आया? सो दिस वन इज अबाउट जनरल आइडिया अबाउट दैट कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अभी दिस वन इज अ जनरल स्केच, नियर अबाउट वैसे ही दिखाई देगा आपको। एक सिलेंड्रिकल शेप की वहां पे ग्लास ट्यूब दिखाई दे रही है। लेफ्ट साइड में आप बताओगे ये क्या है? कैथोड। ये क्या है? एनोड। ये यहाँ पे क्या दिखाया है? बैटरी। एंड दिस वन इज वैक्यूम पंप। नियर अबाउट वही डायग्राम है। यहाँ पे देखो कैथोड पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। अभी यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो वहां पे जो भी होगा, करंट फ्लो होगा, जो भी होगा, तो यहाँ से ये रेज वहां पे ट्रेवल करेंगे फ्रॉम कैथोड टू एनोड। रुद्राक्ष, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। और आप अगर देख पा रहे हो यहाँ पे देखो उनका जो पाथ है एक स्ट्रेट लाइन में दिखाया है। उनके पीछे रीजन भी हमें वहां पे एक्सप्लेन करना है। एक स्ट्रेट लाइन में वहां पे पास हो रहे हैं एनोड के तरफ। अभी एनोड के तरफ अगर पास हो रहे हैं, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे हमारा कंक्लूजन क्या होगा कि जो पार्टिकल ये पास हो रहे हैं ना उनमें नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दैट, और उसके बाद में उन्होंने उसको नाम दिया ये इलेक्ट्रॉन है और उस पर नेगेटिव चार्ज है। सो इन दिस वे द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस।
समझ में आया? देन नेक्स्ट रिलेटेड सेम डायग्राम है। अब ये डायग्राम क्या मेंशन करती है वहां पे, अगर हम बात करते हैं वहां पे, ये आपको कंसीडर करना है, ये जो है ना ये कैथोड रे, ये कैथोड है, ठीक है। ये जो बड़ी डिस्क है ये एनोड है, समझ रहे हो? ये क्या है? दिस वन एनोड। वही एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कैथोड से कुछ रेज निकलने वाले, वो एनोड की तरफ पास होने वाले, एनोड की तरफ पास होने के बाद में वहां पे वो एक होल रखा है ताकि वो आगे पास हो। हमें एक्सपेरिमेंट करना है। अभी आगे पास होने के बाद में यहाँ पे देखो आपको ये रेड कलर और ये जो ब्लू कलर का कुछ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। जो भी कैथोड रेज है ना वो पास हो रहे हैं और हमने उसके बीच में क्या रख दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का असर क्या होता है हमें वो देखना है। और आफ्टर अप्लाइंग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हियर समवट डिफ्लेक्शन दैट इन दैट पाथ ऑफ दैट कैथोड रेज टेक प्लेस। यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे इस कैथोड रेज का अगर पाथ देखोगे, एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे, स्ट्रेट लाइन में जा रहे, जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते, वहां पे देखो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन हुआ है। ये स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था लेकिन वो यहाँ पे डिफ्लेक्ट हुए, ये यहाँ पे डिफ्लेक्ट हुए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उस कैथोड रेज के ऊपर तो वहां पे उनके पाथ में डिफ्लेक्शन होता है, उनका एंगल चेंज होता है, बराबर है? उनका जो ओरिजिनल पाथ होता है वो ओरिजिनल पाथ छोड़ के डिफ्लेक्ट हो जाते, डाइवर्ट हो जाते। समझ में आया? तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद वो डिफ्लेक्शन दिखाते। उसके बाद में यहाँ पे कुछ दिखाया है ऐसे यू टाइप का, यहाँ पे एन लिखा है, यस लिखा है, नॉर्थ साउथ, इसका मतलब ये मैग्नेट है, यानी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब देखो दो तरह की फील्ड हम अगर अप्लाई करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तब वहां पे डिफ्लेक्शन होता है इनकी लाइन के अंदर। ये हमारा कंक्लूजन होगा। तो इस पे हम वहां पे क्या रिवील करेंगे, हमारा वहां पे कंक्लूजन क्या होगा वो भी हमें वहां पे पढ़ना है। सो इट इज वन ऑफ द डायग्राम वेयर एक्सप्लेन द डिफ्लेक्शन। द नेक्स्ट हियर, अभी यही डायग्राम है, बस यहाँ पे क्या चेंज किया है, ये कैथोड है, ये कैथोड है, इसके आगे एनोड होगा। एनोड दिखाया नहीं यहाँ पे, एनोड होगा। कैथोड यहाँ से पास हो रहे हैं, बीच में कहीं तो भी उन्होंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा है। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं देखो यहाँ पे एक मैं मेरा हाथ यहाँ पे पकड़ रहा हूं, यहाँ पे क्या है, बोर्ड पे क्या है उसका शैडो, उसका क्या है शैडो। देखो कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तब जाके उसका शैडो आगे गिरेगा, बराबर है? अगर यहाँ पे कुछ नहीं है शैडो गिरेगा नहीं। इसका मतलब यहाँ पे भी देखो एक कोई तो भी पार्टिकल उन्होंने किया है, एक मेटल क्रॉस लिया है और एग्जैक्टली उसके पीछे देखो उनको वहां पे उसकी शैडो नजर आई। इसके बेस पे वहां पे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई ये जो पार्टिकल होते हैं ना, इनका कोई तो भी पार्टिकल नेचर होता है, कोई तो भी एक पार्टिकल नेचर होता है, वो वहां पे एक्सप्लेन करना है। एंड देन नेक्स्ट मे बी वो डायग्राम यहाँ पे इंक्लूड नहीं की होगी, उसके बाद में मुझे ये भी बताना है, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पे वो पार्टिकल पास हो रहे, कैथोड रेज पास हो रहे, उसके बीच में अगर कोई पार्टिकल रखा मैंने तो उसकी पोजीशन चेंज होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। इस पे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट रखा मैंने, वो कैथोड रेज पास हो रहे तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, इट इज गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं ना, जब वो ऑब्जेक्ट एक जगह पे होता है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब वो पोजीशन चेंज करता है इन मोशन एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी, बराबर है ना? इसका मतलब क्या है कि ये जो कैथोड रेज होते हैं ना वो किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी भी चेंज करते हैं, बराबर है ना? तो सिंपली बहुत सारे कंक्लूजन वहां पे हमें निकालना है, एक एक करके हम वहां पे एक्सप्लेन करने वाले। सो बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना, इट इज अ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट डायग्राम एंड दैट नेम ऑफ साइंटिस्ट, हाउ दैट डिस्कवर दैट इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया यहाँ तक? समझ में आया यहाँ तक? हम एक एक करके तीनों पे एक्सप्लेन करने वाले, दैट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे हमने अभी अभी एक्सप्लेन किया था दैट रुदरफोर्ड एंड चैडविक, दैट वाज द नेम हु डिस्कवर दैट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड इलेक्ट्रॉन रिलेटेड कौन था? जे थॉमसन। उसके बाद में जो टॉपिक आने वाला है, इट इज एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? आई एम जस्ट गिविंग क्लूज, इट इज रिलेटेड विद दैट एलिमेंट। जो पीरियड टेबल में एलिमेंट है ना वो एटॉमिक नंबर, उसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। बोलो सो व्हाट एवर दैट नंबर इज मेंशन इन दैट पीरियड टेबल, सीक्वेंसली है वहां पे 1 2 3 4 5 नीलल
सीक्वेंसली वहां पे वो जो सीक्वेंस है वो नंबर जो है ना उसी को हम एटॉमिक नंबर कहने वाले। इन शॉर्ट एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर कैसे कंफर्म किया जाता है, उसकी मदद से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ये तो आने वाली बात है। अभी हमें पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर यानी वो नंबर जहाँ पे सीक्वेंसली नंबर दिया जाता है। अभी ये बात आपको पता है पीरियोडिक टेबल में ये जो एलिमेंट है वो बराबर ऐसे सीक्वेंसली कैसे कौन से बेस पर रखा गया होगा, कोई ना कोई वहां पे होगा ना। जैसे जैसे एलिमेंट ऐड होते गए वहां पे पीरियोडिक टेबल में एक साथ तो सब नहीं किए ना डिस्कवर, एक एक होते ऐड कर दिए, लेकिन उनका जो वहां पे प्लेसमेंट था वो प्लेसमेंट था उनका नेचर विथ रिस्पेक्ट टू देयर कैरेक्टरिस्टिक, देयर प्रॉपर्टीज, उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनका केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब डिसाइड करता है उनकी पोजीशन क्या होती है। तो जो सिमिलर कैरेक्टर दिखाते, सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाते, उनको पास में रखा गया है, बराबर है ना। समझो वहां पे कोई एलिमेंट है, उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, तो जो एलिमेंट डोनेट करते हैं उनको पास में रखा गया, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उनको पास में रखा गया। सो अकॉर्डिंग टू दैट हियर दैट एलिमेंट्स आर प्लेस्ड, वी आर कंसर्न विद दिस वन एटॉमिक नंबर। हमें क्या एक्सप्लेन करना है, एटॉमिक नंबर। तो सिंपली वी कैन से हियर नेट चार्ज वहां पे जो भी होगा, एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट दी दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन दैट एटम। उस एलिमेंट का जो एटम होगा या एलिमेंट होगा उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट नंबर इज नथिंग बट द एटॉमिक नंबर, इट इज द वन वे। ये मैंने एक बताया, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नथिंग बट द एटॉमिक नंबर। सेकंड बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट द एटॉमिक नंबर। जितने प्रोटॉन होंगे वो एटॉमिक नंबर, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो एटॉमिक नंबर। यानी दो बातें कही मैंने, जितना नंबर प्रोटॉन है जितना नंबर इलेक्ट्रॉन है वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। समझ में आया। अगर मैं किसी एलिमेंट का मैं आपको वहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन बताऊं तो आप एटॉमिक नंबर बता सकते हैं, क्योंकि वही नंबर रहेगा उसका एटॉमिक नंबर। अगर कार्बन के अंदर वहां पे 6 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, 6। अगर वहां पे नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है तो एटॉमिक नंबर क्या होगा। अगर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है तो उसमें प्रोटॉन कितने हो गए, 17। इसका मतलब क्या है, ये तीनों का रिलेशन आपको एक साथ में लगाना है। एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसमें प्रोटॉन कितने, सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन कितने, सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। ये बात क्लियर हुई। तो उसका जो भी फॉर्मूला होगा बाद में हमें एक्सप्लेन करना है एटॉमिक नंबर से रिलेटेड। देन नेक्स्ट एटॉमिक मास नंबर, वहां पे ऊपर अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखते हैं ना, वो एटॉमिक नंबर के साथ में और एक नंबर आता है, उसे हम मास नंबर कहते हैं या एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। शुरुआत में जो एलिमेंट है ना वो एटॉमिक मास नंबर नियर अबाउट एटॉमिक नंबर के डबल होता है, लेकिन आगे जाके वो वहां पे इंक्रीज होता है। सो दैट एटॉमिक मास नंबर, अभी एटॉमिक मास नंबर क्या होता है उसका वहां पे डिटेल में स्टडी, उसका कैलकुलेशन, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट एटॉमिक मास नंबर हमें वहां पे पता करना है कि वहां पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हम एडिशन करते हैं उस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन कहां पे होते हैं एटम के अंदर, इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन कहां पे होते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस। तो अगर मैं पूछता हूं व्हाट आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, देन योर आंसर विल बी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो वो जो कॉम्बिनेशन है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का, सिंपली दैट नंबर इज नथिंग बट द एटॉमिक मास नंबर। समझ में आया। अगर मैं कहूं वहां पे कार्बन का एटम है, कार्बन के एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, सो व्हाट विल बी द एटॉमिक मास नंबर ऑफ कार्बन। 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, तो उसका मास नंबर क्या होगा, जस्ट यू हैव टू डबल इट, ट्वाइस करना है ना। तो आपको ये समझ में एटॉमिक मास नंबर यानी क्या होता है। मैं सिंपली आपको वो नंबर अगर प्रोवाइड किए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के, आप मास नंबर भी एक्सप्लेन कर सकते हो, या मास नंबर दिया है किसी एटम का, आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं, मानो कार्बन का एग्जांपल लेते हैं। कार्बन नाम का जो एलिमेंट है, कार्बन के अंदर, डोंट ओपन, चलिए, कार्बन के अंदर वहां पे उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और उसका मास नंबर है, मैं यहाँ पे 14 लिख रहा हूं। अभी आपको यहाँ पे पता करना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, इजीली आपको समझ में आएगा जो भी होगा। ये 14 है, नेक्स्ट वाला यहाँ पे लिखता हूँ 13 है, यहाँ पे लिखता हूँ 12 है। 3 अलग अलग आइटम लिख दिया मैंने।
आपको पहले इसके बारे में पढ़ना है क्योंकि ये इजी है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6, मास नंबर क्या है 12। अभी आपको पता करना है यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन कितने हैं। आप आंसर दोगे, एक बार मुझे टाइम बताओ, टाइम बताओ एक बार। 350। यानी टाइम हो गया, ओके जस्ट स्विच ऑफ।